हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मिथ पीपीएससी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दूसरा वीडियो चैप्टर करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इमरजेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आपको वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सभी एनसीईआरटी वन लाइनर महेश बर्नवाल के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंटली बाय द मुगल एम्परर। मुगल एम्परर के द्वारा इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया हुआ लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर 1727 के बीच में लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट, वेयर डिड मुर्शिद कुली खान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट, वेयर विच गवर्नर ऑफ बंगाल कंपेयर द इंग्लिश विथ होनी बीज? अलवर्दी खान। अलवर्दी खान कंपेयर द गवर्नर ऑफ बंगाल विथ होनी बीज। Next, during the tenure of which Nawab did the event of Black Hole happened on 20th June 1756? Siraj-ud-Dowla. Siraj-ud-Dowla. During the tenure of Siraj-ud-Dowla, the Nawab, the event of Black Hole happened on 20 June 1756. Next, between which two parties was the Treaty of Alinagar signed? लॉर्ड क्लाइव एंड सिराज-उद-दौला 9 फरवरी 1957। बिटवीन लॉर्ड क्लाइव एंड सिराज-उद-दौला द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड, डेट है 9 फरवरी 1957। अगला, हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर रिमूविंग मीर जाफर इन 1760? मीर कासिम। द नवाब ऑफ बंगाल मेड मीर कासिम आफ्टर मीर जाफर इन 1760। अब हम लोग इस टेबल को देखने वाले हैं। द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, जो नवाब था अवध का, और शाह आलम द्वितीय, उसको डिफीट किया गया था इंग्लिश फोर्स के द्वारा अंडर मेजर हेक्टर मुनरो एट बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बैटल ले इन द फैक्ट दैट नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल बट ऑल्सो मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश। नेक्स्ट, Who was the commander of British forces during the Battle of Buxar? Major Hector Munro. Major Hector Munro was commander of British forces during the Battle of Buxar. Next, who was the Nawab of Bengal during the Battle of Buxar? Mir Qasim. Mir Qasim was Nawab of Bengal during the Battle of Buxar. Next देखते हैं, Robert Clive was instrumental in laying the foundation of British power in India when he defeated Siraj-ud-Dowla in Battle of Plassey on 23 June 1757. Robert Clive was instrumental in laying the foundation of British power in India when he defeated Siraj-ud-Dowla in Battle of Plassey on 23 June 1757. Who was the commander of Bengal who betrayed the Nawab in the Battle of Plassey? Mir Jafar. Mir Jafar, the commander of Bengal who betrayed the Nawab in the Battle of Plassey. Next, who was the Mughal emperor during the Battle of Plassey? आलमगीर द्वितीय, जिसको हम अजीज उद दीन बोलते हैं। आलमगीर द्वितीय, अजीज उद दीन। नेक्स्ट, who became the Nawab of Bengal after Battle of Plassey? Mir Jafar. Mir Jafar became the Nawab of Bengal after the Battle of Plassey. Next, which battle proved determinant conclusive in establishing British dominance in India? Battle of Plassey 23 जून 1757। नेक्स्ट टेबल है, रॉबर्ट क्लाइव concluded two important treaties. रॉबर्ट क्लाइव concluded two important treaties at इलाहाबाद in अगस्त 1765, one with Nawab of Awadh and other with Mughal Emperor Shah Alam द्वितीय. Mir Qasim, the dethroned Nawab of Bengal, spent the rest of his life in abject misery as a homeless wanderer and died unknown in June 1777. अगला पॉइंट है,
Through which treaty did the Britishers got Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha? Treaty of Allahabad 1765. Through which treaty did the British got Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha? Treaty of Allahabad 1765. Next point, which governor was known to have emerged from heaven? Robert Clive. Which governor was known to have emerged from heaven? Robert Clive. Who established dual government in Bengal during 1765 से 1772? रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव established dual government in Bengal. ड्यूरेशन था 1765 से लेकर 1772 के बीच. अब हम लोग देखने वाले हैं इस इम्पोर्टेंट टेबल के बारे में. इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स और डेट्स. ब्लैक होल. ब्लैक होल 20 जून 1756. ब्लैक होल 20 जून 1756. ट्रीटी ऑफ अलीनगर 9 फरवरी 1757. ट्रीटी ऑफ अलीनगर 9 फरवरी 1757. बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757. बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757. बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764. बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764. फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 22 अगस्त 1765. फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 22 अगस्त 1765. सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765. सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765. ट्रीटी ऑफ बनारस 1773. ट्रीटी ऑफ बनारस 1773. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फाउंडर्स ऑफ न्यू स्टेट्स. बंगाल 1719 से 1720 के बीच में फाउंडर मुर्शीद कुली खान. बंगाल फाउंडेड इन 1719 से 1720 बाई मुर्शीद कुली खान. हैदराबाद 1724 बाई निज़ाम उल मुल्क चीन कुली खान. निज़ाम उल मुल्क चीन कुली खान. भरतपुर 18th सेंचुरी चूड़ामैन जाट बैदन सिंह. भरतपुर 18th सेंचुरी चूड़ामैन जाट बैदन सिंह. कर्नाटिक अरकोट 18th सेंचुरी जुल्फिकार खान फर्स्ट नवाब सदातुल्ला खान. अवध 1722 से लेकर 1724 के बीच में फाउंडर सदात खान बुरहान उल मुल्क. जयपुर अमेर 18th सेंचुरी सवाई राजा जय सिंह. सवाई राजा जय सिंह. रोहिलास एंड बंगास पठास 18th सेंचुरी मोहम्मद अली खान मोहम्मद बंगास. मैसूर 18th सेंचुरी हैदर अली. मैसूर 18th सेंचुरी हैदर अली. नाउ द पॉइंट इज लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 के बीच इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी वाइल लॉर्ड लिल्टन 1876 से 1880 के बीच में इज क्रेडिटेड विथ फॉरवर्ड पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान. लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी वाइल लॉर्ड लिल्टन 1876 से 1880 इज क्रेडिटेड विथ फॉरवर्ड पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान. Then this is over. Our second chapter is completed and the chapter is Emergence of East India Company. We will discuss the next chapter in next video. Thanks for watching this video.